Hello students, we were doing basis and dimension. लास्ट टाइम हमने बेसिस के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल किए. आज हम कुछ थ्योरम्स करेंगे. इफ S is equal to V1, V2 up to Vn is a basis of vector space over field F, then every element of V can be uniquely expressed as linear combination of vectors V1, V2 up to Vn and conversely. So proof of this theorem, we have to prove if S is a basis, then every element of V can be uniquely written as linear combination of the vectors of set S, and if every element of V can uniquely written as linear combination of set of vectors of set S, then S should be basis. So first let us take S be the basis of vector space. Then each vector can be expressed as, अगर आपके पास S basis है तो by definition of basis S spans the complete vector space. It means every element of V can be written as linear combination of the given vectors, that is V1, V2 up to Vn. So V is equal to linear combination of these vectors where Ai belongs to field F. Let if possible this expression is not unique. अगर ये यूनिक नहीं है तो एक और वे हो सकता है इस एक्सप्रेशन को ही लिखने का. So let V can be written as B1 V1 plus B2 V2 up to Bn Vn for all scalars belongs to field F. Now subtracting 1 and 2, we have A1 B1 A1 minus B1 times V1 plus A2 minus B2 times V2 up to so on Bn minus Vn times Vn. अब क्योंकि आपके पास जो सेट S है वो बेसिस है और बेसिस में दो कंडीशंस होती हैं. एक तो वो पूरे के पूरे वेक्टर स्पेस को स्पैन करती है, दूसरा आपके पास जो सेट है वो Li होता है, उसके सारे वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं. सो इट मीन्स V1 V2 अप टू Vn आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स. सो इनके साथ जो एसोसिएटेड स्केलर्स हैं वो क्या होंगे? ऑल जीरो. So by using definition of linearly independent vectors, we have a1 minus v1, इसके साथ जो स्केलर है a1 minus b1 0, a2 minus b2 0 and an minus bn 0. So this implies a1 is equal to b1, a2 is equal to b2 and an is equal to bn. So यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि अगर आपके पास S बेसिस है वेक्टर स्पेस की, then every element can be uniquely written as linear combination of set of given vectors in S. Now conversely, let each element of V can be uniquely expressed as linear combination of V1, V2 up to Vn, and we have now to prove that S is the basis. So S basis प्रूव करने के लिए एक तो हमें प्रूव करना पड़ेगा V जो है वो पूरे पूरे वेक्टर स्पेस को स्पैन करता है, और दूसरा आपका जो सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स हैं उसमें. अब आपके पास हर एलिमेंट जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है V का, वो आपको ऑलरेडी गिवन है. इनफैक्ट यूनिकली रिटन, यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन. सो इसका तो मतलब ही यही है कि आपके पास S स्पैन्स द कंप्लीट वेक्टर स्पेस. सो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे सेटिस्फाई होता है. अब सिर्फ हमने क्या प्रूव करना है कि ये जो वेक्टर्स हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है. सो लेट अस टेक जीरो फ्रॉम वेक्टर स्पेस. सो जीरो कैन बी रिटन एज, अब अगर जीरो वेक्टर स्पेस में है तो हम अकॉर्डिंग टू दिस जो हमें गिवन है दैट एवरी एलिमेंट कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 V2 Vn और यूनिकली रिटन. सो हम जीरो को लिख सकते हैं A1 V1 प्लस A2 V2 अप टू An Vn फॉर ऑल स्केलर्स बिलोंग्स टू फील्ड F. And 0 can also be written as 0 into V1 plus 0 into V2 plus 0 into Vn. But this expression should be unique because of the given condition. So आपके पास A1 क्या आ गया? 0. अगर हम इनको कंपेयर करें A2 0, A3 0 and An 0. So all the scalars are 0, therefore set is linearly independent. So यही हमने प्रूव करना था. सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है और हर एक वेक्टर जो है V का वो कैसे लिखा जा रहा है? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ given vectors, that is V1 V2 up to Vn. So therefore S spans the complete vector space, hence the given set S is the basis of V. So this completes the proof of the theorem.
नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, देयर एग्जिस्ट अ बेसिस फॉर ईच फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस। अब इस थ्योरम के हिसाब से हमें हमेशा देयर एग्जिस्ट अ बेसिस फॉर एवरी फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस। सो जो भी आपके पास फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस होगा उसकी बेसिस ज़रूर एग्जिस्ट करेंगी। देयर एग्जिस्ट अ बेसिस फॉर ईच फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस। और if S is equal to V1, V2 up to Vn spans a vector space V over field F, then there exists a subset of S which is basis of V. So आपके पास इसका सबसेट ज़रूर एग्जिस्ट करेगा जो किसकी बेसिस बनाएगा, V की बेसिस बनाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे आपने क्या प्रूव करना है, अगर कोई वेक्टर स्पेस फाइनाइटली जनरेटेड है, फाइनाइटली जनरेटेड सेट मीन वेक्टर स्पेस मीन्स उसका जो जनरेटिंग सेट है उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। अगर उसके स्पेनिंग सेट में और यू कैन से जनरेटिंग सेट में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो वो फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस होगा और उसकी बेसिस ज़रूर एग्जिस्ट करेंगी। सो हाउ विल वी प्रूव? सो लेट अस टेक अ सेट S विच इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब इसमें मैं एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस करती हूँ आपके साथ, फिर उसके बाद हम इसका प्रूफ रीड करेंगे। अगर आपके पास ये सेट है, ये स्पैन कर रहा है वेक्टर स्पेस V को, ठीक है, अब इसमें कितने फाइनाइट एलिमेंट है, तो ये फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस हुआ। देन देयर एग्जिस्ट अ सबसेट ऑफ S विच इज सब बेसिस ऑफ V। अब सबसेट ऑफ S अपना खुद का भी तो सबसेट हो सकता है, तो हम इसी सेट से स्टार्ट करेंगे। अगर तो ये सेट Li है, ठीक है, स्पैन तो ये कर ही रहा है, और अगर ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो जाता है देन ये सेट क्या बन जाएगा, बेसिस बन जाएगा, और अवर थ्योरम इज प्रूव। ठीक है, हमने यही तो करना है। बेसिस बनाने के लिए दो ही कंडीशन चाहिए होती हैं, एक तो कि वो जो आपके पास गिवन सबसेट है V का वो आपकी वेक्टर स्पेस को जनरेट करे। जनरेट मीन्स एवरी वेक्टर ऑफ वेक्टर स्पेस कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ गिवन सेट ऑफ वेक्टर S। और दूसरा वो जो वेक्टर सेट S में गिवन है वो सारे क्या होने चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब यहाँ पे आपको एक पार्ट तो गिवन ही है कि जो आपके पास वेक्टर स्पेस है वो फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस है। इट मीन्स जो उसका जनरेटिंग सेट है उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। अब अगर उसका जनरेटिंग सेट है इट मीन्स उसको उस सेट ने जनरेट कर दिया। दैट इज कोई सेट होगा जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे और वो सेट V को जनरेट कर रहा है। तो एक कंडीशन तो उस सेट के लिए ट्रू है। हमने सिर्फ कौन सी कंडीशन चेक करनी है कि वो Li भी है। अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है देन दैट बिकम्स द बेसिस। सो हम यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। अगर ये सेट Li है, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो यही आपके पास जो सेट है वो उसका बेसिस बन जाएगा क्योंकि ये उसको जनरेट भी कर रहा है। दूसरी कंडीशन, अगर सपोज ये सेट Li नहीं है, Li ना होने का मतलब ये है कि ऑल स्केलर्स आर नॉट जीरो। इनमें से कोई एक स्केलर ऐसा है जो जीरो नहीं है। सपोज VR का जो कोफिशिएंट जो VR के साथ एसोसिएटेड स्केलर है AR वो जीरो नहीं आता आपका। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उस VR को रिमूव कर दें, उसके बाद तो सारे स्केलर जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें जो सेट मिलेगा वो हम प्रूव कर देंगे कि वो Li है, और हमें एक और चीज़ प्रूव करनी पड़ेगी कि वो जो सेट है वो अब वेक्टर स्पेस को जनरेट कर रहा है। अगर हम उस सेट के लिए वो दो चीज़ें प्रूव कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो उसकी बेसिस बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद हो सकता है कि उस VR को निकालने के बाद भी कोई और एक एलिमेंट ऐसा हो जिसका स्केलर नॉन ज़ीरो आ जाए। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, उस एलिमेंट को भी रिमूव कर देंगे। प्रोसीडिंग इन दिस वे हमारे पास लास्ट में क्या होगा, एक एलिमेंट बच जाएगा। लास्ट में अगर हमें सारे एलिमेंट, हमें स्केलर्स हम सारे निकालते गए वेक्टर्स, हमें उनके साथ एसोसिएटेड स्केलर्स कभी सारे ज़ीरो मिले ही नहीं। लास्ट में हमारे पास एक वेक्टर बचेगा। ठीक है, और हमेशा एक वेक्टर क्या होता है, सिंगलटन इज ऑलवेज Li। ठीक है, क्योंकि नॉन ज़ीरो वेक्टर्स हैं हमारे पास। तो वेक्टर नॉन ज़ीरो है तो उसके साथ जो एसोसिएटेड स्केलर है उसको क्या होना पड़ेगा, ज़ीरो। सो एवरी सिंगलटन सेट इज Li। तो इसकी बेसिस तो ज़रूर
एग्जिस्ट कर जाएंगी. सो यही कंसेप्ट है. सो लेट अस नाउ रीड द प्रूफ ऑफ द थ्योरम. सो फर्स्ट, इफ S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, यही लिखा है, हमने भी यही कहा था कि हम इसी सेट से शुरू कर देते हैं. इफ दिस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, देन ये भी गिवन है कि ये जो एलिमेंट है ये स्पैन कर रहे हैं वेक्टर स्पेस को, तो दोनों कंडीशन ट्रू हो गई सेट के लिए, देन दे विल फॉर्म द बेसिस ऑफ V एंड द थ्योरम इज प्रूव्ड. अब प्रॉब्लम तब आएगी व्हेन दिस सेट इज नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट. लेट इफ S इज लीनियरली डिपेंडेंट. डिपेंडेंट मीन्स देन सम VR कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द रिमेनिंग वेक्टर्स. अब हमने एक थ्योरम भी की थी कि अगर आपके पास सेट S, कोई भी सेट लीनियरली डिपेंडेंट है, तो देयर मस्ट एक्सिस्ट सम VR सच दैट इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द रिमेनिंग वेक्टर्स. सो लेट अस टेक सम एलिमेंट V which from vector space V we can express this as linear combination of the given set of vectors v1 v2 up to vn. क्योंकि ये जनरेटिंग सेट है वेक्टर स्पेस का, तो कोई भी अगर हम एलिमेंट ले V में से, वो कैसे लिखा जा सकेगा? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सेट ऑफ वेक्टर्स ऑफ सेट S. सो आपके पास V कैसे लिखा जाएगा? a1 v1 a2 v2 अप टू ar vr माइनस वन प्लस ar vr ar प्लस वन vr an vn वेयर ai बिलोंग्स टू f. और ऑल्सो vr भी लिखा जा सकता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स v1 v2 vr vr प्लस वन और vn. सो आपके पास क्या आ जाएगा? दे आर b1 v1 b2 v2 br माइनस वन br माइनस वन br प्लस वन vr प्लस वन अप टू bn vn फॉर bi बिलोंग्स टू f. ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इस vr की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे. ठीक है, जब हम इस vr की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये vr चला जाएगा सेट में से. तो यहाँ पे जब v लिखोगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स, इसमें vr नहीं आएगा. ठीक है, इसमें vr की जगह क्या आ जाएगा? vr माइनस वन तक, फिर उसके बाद vr प्लस वन तक. तो अब देखो, जब हम v लिखेंगे तो v कैन बी नाउ रिटन एज v1 a2 v2 a1 v1 ar माइनस वन vr माइनस वन ar, और vr की जगह हम ये सारा लीनियर कॉम्बिनेशन यहाँ पे लिख देंगे. सो इट इज b1 v1 प्लस b2 v2 अप टू br माइनस वन vr माइनस वन अप टू सो ऑन bn vn, और साथ में फिर ये वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे ar प्लस वन vr प्लस वन अप टू an vn. नाउ आप क्या करोगे? कलेक्टिंग द स्केलर्स एसोसिएटेड विथ v1. तो ये क्या आ जाएंगे? a1 प्लस ar b1, फिर a2 प्लस ar b2 v2. अब यहाँ पे आपके पास vr आपने ओमिट कर दिया, vr अब नहीं है. सो आपके पास अब क्या आ गया? v कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स v1 v2 अप टू vr माइनस वन, फिर vr प्लस वन से vn तक. सो हमने क्या कर दिया? एक एलिमेंट रिमूव कर दिया vr फ्रॉम s, और फिर भी हमने चेक किया कि ये वाला जो सेट है ये क्या कर रहा है? दे स्पैन्स V. ठीक है, स्पैन्स V मीन्स जनरेट द वेक्टर स्पेस, क्योंकि V जो है वो कैसे लिखा जा रहा है? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स v1 v2 अप टू vr माइनस वन vr प्लस वन vr. ठीक है, और ये जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट. अगर ये सबसेट लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाता है, vr को निकालने के बाद अगर ये सबसेट लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाता है, देन इट विल फॉर्म द बेसिस. और अगर नहीं होता है, देन अगेन प्रोसीडिंग द सेम वे आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स. जैसे मैंने आपको पहले समझाया था कि आफ्टर फाइनाइट स्टेप्स, ठीक है, आपको लास्ट में एक ऐसा वेक्टर जरूर मिलेगा. अगर आपके पास 3 नहीं बचते, 2 नहीं बचते, तो एक तो जरूर बच जाएगा जो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा. तो बेसिस तो जरूर एग्जिस्ट करेंगी. सो प्रोसीडिंग इन दिस वे आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप वी गेट अ सबसेट ऑफ S which is linearly independent and spans V, thus is a basis of V. So this completes the proof. This shows that there must exist a basis for every finitely generated vector space over field F. Next theorem,
If S is V1, V2 up to Vn spans vector space over field F, then any n plus 1 vectors in V are linearly dependent. ठीक है, अगर आपके पास V1 से Vn कोई सेट है S, जिसमें आपके पास V से V1, V2 अप टू Vn वेक्टर्स हैं, जो V को जनरेट, स्पैन का मतलब जनरेटिंग सेट है ये V का, और आपने प्रूव करना है कि कोई भी n प्लस 1, अगर इसमें मैं एक और वेक्टर डाल देती हूँ तो यहाँ पे n प्लस 1 वेक्टर्स आ जाएंगे और वो क्या बन जाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट. सो लेट अस प्रूव दिस. लेट S डैश, हमने एक सेट ले लिया S डैश W1, W2 अप टू Wn प्लस 1 विच इज अ सबसेट ऑफ V. ठीक है, हमने V का ही एक सबसेट लिया. अगर ये सबसेट है V का तो इसके एलिमेंट्स कहाँ से आए होंगे, V में से. सो दीज ऑल बिलोंग्स टू V. सो एज S is equal to V1, V2 up to Vn spans vector space V. Therefore, every element of V can be written as linear combination of elements of S. So, हमारे पास जो भी आपके पास V के एलिमेंट है वो कैसे लिखे जा सकते हैं, by linear combination of elements of S. So, linear combination हमने कैसे लिखा, A1, A11 V1, A12 V2, A1n Vn, ऐसे ही W2 is equal to A21 V1, A22 V2, A2n Vn. ये सारे स्केलर्स एसोसिएटेड विद दीज वेक्टर्स, और Wn plus 1 कैन बी रिटन एज Wn plus 1 V1, Wn plus 2 n plus Wn plus 1 is equal to An plus 1 comma 1 V1 plus An plus 1 2 V2 plus so on An plus 1 n Vn. We have this system where all Aij's are all scalars from field F. Now we have considered the following. हमने क्या किया, यहाँ तक तो हमारे पास ये सिस्टम बन गया. उसमें हमने क्या किया, जो V1, V2 अप टू W1, W2 अप टू Wn प्लस 1 वेक्टर्स थे, जो वेक्टर स्पेस के थे, उसको हमने लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लिया. किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में, सेट ऑफ वेक्टर्स फ्रॉम सेट S. ठीक है. सो लेट अस नाउ कंसीडर, एक और सिस्टम हमने अब लिया जिसमें n इक्वेशंस थी और n प्लस 1 अननोन्स. ठीक है. सो हमने ये इक्वेशंस ऐसे लिखी, इसमें n इक्वेशंस है. ठीक है, n इक्वेशंस है ये आपके पास, और आपके पास n प्लस 1 अननोन्स यहाँ पे है x1, x2, xn प्लस 1, और n इक्वेशंस कैसे, n रोज है ये, a11, a12, a1n, और ये n प्लस 1 कॉलम्स हैं. ठीक है. सो आपके पास अननोन्स कौन से हैं, ये x1, x2, xn प्लस 1, x1, x2, xn प्लस 1, ये आपके पास अननोन्स हैं, और यहाँ पे ये आपको n इक्वेशन. सो दिस इज सिस्टम ऑफ n इक्वेशन विद n प्लस 1 अननोन्स. होमोजीनियस सिस्टम है ये. तो यहाँ पे अगर आपके पास n प्लस 1 अननोन्स ज़्यादा हैं इक्वेशन से, तो सिस्टम का जो सोल्यूशन होगा वो नॉन जीरो सोल्यूशन होगा. नॉन जीरो सोल्यूशन मीन्स ऑल दी वैल्यूज जो हमारी आएंगी x1, x2 अप टू xn प्लस 1 की, वो सारी जीरो नहीं होंगी, तो कुछ उसमें नॉन जीरो भी होंगी, ट्रिवियल सोल्यूशन नहीं होगा. सो इट हैज़ नॉन जीरो सोल्यूशन. तो नॉन जीरो सोल्यूशन, लेट अस टेक, इसका जो सोल्यूशन है वो x1 की वैल्यू अल्फा 1 है, x2 की वैल्यू अल्फा 2 आ गई, और xn प्लस 1 की वैल्यू अल्फा n प्लस 1. तो अगर आपके पास सिस्टम की आपने वैल्यू निकाल ली x1, x2 की, तो वो इस सिस्टम को सेटिस्फाई करेगी. सो हमने क्या करना है, अल्फा 1, अल्फा 2 से इस सिस्टम को सेटिस्फाई करवाना है. तो जहाँ x1 है वहाँ अल्फा 1, x2 की जगह अल्फा 2, और xn प्लस 1 की जगह अल्फा n प्लस 1. सो वी हैव नाउ दिस सिस्टम. ठीक है. अब हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया V1 से, सेकंड को V2 से, और थर्ड को Vn से, और इनको हमने मल्टीप्लाई किया और देन ऐड किया. अब ऐड कैसे किया, ये आपके पास फर्स्ट कॉलम है उसको ऐड करना है इस तरह से, वर्टिकल, इसको इस तरह, इसको इस तरह. अब देखो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, अल्फा 1, और क्या आएगा A11 V1, फिर नेक्स्ट क्या आएगा यहाँ पे A12 V2. सो ये A11 V1 अप टू A1n Vn. ठीक है. क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे, दिस इज A12, दिस इज A13 एंड सो ऑन A1n Vn. सो दिस इज
आपके पास अल्फा 1 के कोफिशिएंट, फिर उसके बाद सो ऑन यहाँ पे अल्फा n प्लस 1 कॉमन आएगा और ये किसके कोफिशिएंट आ जाएंगे, अल्फा n प्लस 1 के कोफिशिएंट अल्फा n प्लस 1 1 v1 अप टू a n प्लस 1 n vn। ठीक है, अब अगर आप देखो ये आपके पास क्या था, ये आपने लीनियर कॉम्बिनेशन जो लिखा था W1 लिखा था आपने a11 v1 प्लस a12 v2 प्लस a13 v3 अप टू a1n vn। आपने W1 को ये लिखा था, तो अल्फा 1 इंटू W1 प्लस अल्फा 2 इंटू W2 प्लस अल्फा n प्लस 1 इंटू Wn प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एंड व्हाट अबाउट दीज अल्फा आइज, अल्फा आइज जो हमने अभी डिस्कस की ऊपर, ये क्या थी, सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम। कौन सा सिस्टम, जिसमें n इक्वेशंस थी और n प्लस 1 अननोन्स थे, x1 x2, जिसकी वैल्यूज क्या आ गई थी, अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n प्लस 1 एंड दे ऑल आर नॉट जीरो, वी हैव अ नॉन जीरो solution, so they all are not zero and the linear combination is zero. What does this imply? This implies that this set containing vectors w1 w2 up to wn plus 1 is linearly dependent set. So this is what we want to prove. So this proves the theorem. So thank you for watching the video.